सी सम नंबर 8 था अपना, धोनी कार सेंटर, धोनी ऑटो कार सेंटर। 8th problem. 8th problem. Homework sum. Check the answers. Sold 1,000 shares for rupees 100 each and paid brokerage of 1% and the amount credited to our account. Okay? वो अमाउंट क्रेडिटेड देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये आपको बताया था, रिमेम्बर बैंक का मैकेनिज्म और हमारा मैकेनिज्म ऑपोजिट चलता है। मतलब व्हेनेवर वी डेबिट बैंक, बैंक क्रेडिट्स अवर अकाउंट। याद है, बताया था ऑपोजिट। वी थिंक फ्रॉम अवर पॉइंट ऑफ व्यू, बैंक थिंक्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारे पास पैसा आता है तो डेबिट करते हैं बैंक को, साइमल्टेनियसली बैंक अपने को क्रेडिट करता है, मतलब उसके लिए हम लोग गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, ऐसा है। आपको बोला था ना पेरेंट्स का पासबुक उठा के देखना चाहिए, तो जहां जहां क्रेडिट्स है वो पैसा बैंक में आया है, और जहां जहां डेबिट्स है वो पैसा बैंक से गया है। तो कीप दिस इन माइंड। इसमें आपको डेबिट क्रेडिट देखने का ही नहीं, आपको खाली ट्रांजैक्शन पढ़ने का। अभी क्या हो रहा है, सेल ऑफ शेयर्स हो रहा है। व्हेनेवर यू सेल शेयर्स, व्हाट इज हैपनिंग, पैसा आ रहा है, शेयर्स जा रहा है, मनी इज कमिंग इन, शेयर्स आर गोइंग आउट। ओके, तो एंट्री विल बी व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। और अमाउंट क्या होगा आपका, 1,000 शेयर्स ऑफ 100 इज, दैट मेक्स इट 1 लाख। 1 लाख पे 1% ब्रोकरेज जो है माइनस हो जाएगा। व्हेनेवर यू सेल शेयर्स यू सबट्रैक्ट ब्रोकरेज, मालूम है ना ये। ब्रोकर आपका पैसा काट के आपको हाथ में रेट अमाउंट देता है। तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स विल बी 1 लाख रुपीज। बैंक टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इज दिस क्लियर? बैंक टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स विल बी 1 lakh. Not 1 lakh, sorry, 99,000. Bank to investment in shares will be 99,000. Why 99,000? 1 lakh minus 1,000 of brokerage. 1% of brokerage. 1,000 of brokerage, 99,000 net amount. Some of you have written 1 lakh 1,000. Some of you have written some बताई calculation. यहाँ पे काफी calculation error हुआ था। ब्रोकरेज ऐड नहीं करना है। ब्रोकरेज ऐड कब करना है, व्हेन यू बाय शेयर्स। जब आप शेयर्स खरीद रहे हो तभी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा ना, शेयर्स का प्राइस पे ब्रोकरेज ऐड करके आप पे कर रहे हो। बट व्हेनेवर यू आर सेलिंग you will get that much amount less. अच्छा, will you be able to record any profit or loss on these shares? Is it possible? Not possible. Why? Because the cost price is not given. Cost price is not given. Cost price is missing in the sum. If the cost price is only missing, then you won't be able to calculate profit or loss. So what do we assume in those cases? There is no profit, No loss. We are selling on same price. Okay, जो sale है वही cost है. No profit, no loss, and bank to investment in shares. Is this clear? Then purchase goods from Ashish and Company, 2 lakh rupees. Your entry should be what? Purchase to Ashish and Company. Ashish and Company, 2 lakhs. Perfect. Then sold goods to Virat, 1,50,000. Entry should Company to sales. be Virat and Company to sales. Very good. That will be 1,50,000. Then paid for advertisement 30,000 to Times of India. Advertisement to cash. Advertisement to cash expense. Perfect. Paid for printing and Not stationery. Times of India. No. When you are paying any expense or receiving any income, party's name must be ignored. Then Thank you, sir. paid for printing and stationery क्या होगा? Printing and stationery to cash. To cash. Purchase goods from Prakash. ये वाला important था with GST. Right now we are buying on credit. तो आपका entry क्या होगा? Purchase account debit. Input CGST debit. Input CGST debit. Input SGST debit. Input SGST debit. To Prakash and Company. Prakash and Company. Values क्या होंगे आपके? 1,50,000 in purchase. In 9%, 9%. 13,500. Prakash will have 1,77,000. 1,77,000. Is this clear?
So purchase 150, input CGST 13500, input SGST 13500 to Prakash. Prakash is our creditor. इसको देना है अपने को 177,000. इतना देना बाकी है. Hope this is clear. Then purchase goods from Vikram and Sons of 120 at Paid 18%. transport charge. Oh, sorry. Pay transport charges of 10,000 at 12% GST. क्या होगा entry? Transport charges debit. Input Input CGST debit. Input SGST to cash account. Transport charges debit will be 10,000. Input CGST debit 600. Input SGST debit 600. To cash will be 11,200. 11,000. We cannot write conveyance, right? Here you cannot use conveyance. Why you cannot use conveyance? Conveyance. Road charges are an expense and conveyance. Employee का traveling expense है, train fare, auto fare, bus fare, taxi fare. That is conveyance. That is traveling. Transportation is for goods. Okay, transportation expense is for goods, mainly for goods, local transport. Okay, you use transport only. Purchase goods from Vikram and Sons 1,20,000. So in this it was a transport on goods, so we calculated transport separately. No? Yes, because it was on goods. If it would have been on purchase of asset, then would have added to the cost of asset. Cost of asset में add हो जाता वो. Okay. Thank you. Purchase goods from Vikram and Sons 1,20,000 at 18% GST, paid half the amount immediately. So this was partly cash, partly credit, right? So पहले क्या करने का? 1,20,000 पे GST 99%, that is 10,800, 10,800. तो आपका entry होगा purchase account debit, Input CGST GST debit, input SGST debit, to cash to Vikram and Sons. cash to Vikram. बराबर है. Purchase में कितना आएगा? I think 1,20,000. Taxes में आएगा 10,800, 10,800. To cash में 70,800. 70,800 और विक्रम में भी 70,800. That is your end. Have you got that? Okay. Then paid to Prakash and company less 10% discount. अभी ध्यान से देखो. How much are we supposed to pay to Prakash? How much are we supposed to pay to Prakash? 1,77,000. Okay, 1,77,000. 10% discount है तो discount कितना हो जाएगा? 17,700. 1,77,000 का 10%. Actually ये perfect नहीं है, practical method नहीं है. Okay, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? 177 पे discount ले रहे हो. मुझे देख के बताओ. Because it is with GST. 177 with GST or without GST? With GST. GST. तो इसमें गुड्स का अमाउंट कितना है? सिर्फ 1,50,000. तो आइडियली डिस्काउंट सिर्फ गुड्स के अमाउंट पे होना चाहिए. 150 पे होना चाहिए. 10%, 15,000. बट यहाँ पे थियोरी में भी ऐसा दिया और कॉलेजेस भी सेम फॉलो कर रही हैं. तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा. जो आपने किया वो करेक्ट है. कल का सोल्यूशन में जो आपने किया वो करेक्ट है. You don't go for 150. You take discount on 177 only. Okay? तो 177 with GST उसी पे डिस्काउंट ले ले. थोड़ा फंडामेंटली रॉन्ग है बट ठीक है. अभी थियोरी में चल रहा है तो चला लो. ओके. कॉलेजेस आर फॉलोइंग द सेम थिंग. तो आपका एंट्री क्या बनेगा इधर? Prakash and company debit to cash to discount receipt. प्रकाश टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव. प्रकाश को देना था 177. सेम वे आप क्रेडिट माइनस डेबिट करके ढूंढो. To cash to discount. Discount is 17,700. 177 का ही 10% and cash में आएगा 159,300. 159,300. Is this clear? So which GST है but ले लेना. Okay? क्योंकि आफ्टरवर्ड के सेटलमेंट बाद में जब भी सेटल हो रहा है. शुरुआत में तो याद है हम लोग जब TD CD कैलकुलेट करते हैं. TD CD GST. CD is always calculated on after TD amount. याद है? Before GST amount. Immediate CD whenever we do. करते हैं ना बड़ा सा working note. TD फिर GST. So if we subtract cash discount from the cash price like without GST, will it be wrong? Yeah, they might give it wrong because colleges are not following that. Okay? So colleges are following this method only. तो जो देना बाकी है वही pending amount पे directly GST करना है. Okay?
So do it this way only. 177 के 10%, 17,700 and net amount 159 final amount. Okay. Then invoiced goods to Sanjay. Invoiced का मतलब क्या है? Invoice means bill. Sold. Sold. Lease. Invoice Sold. मतलब it is sales. So Sanjay account debit to sales account. Sanjay account debit to sales account, that will be 60,000 rupees. Got it? Sanjay return goods of 10,000, that is sales return. So entry will be what? Sales return to Account debit to Sanjay account 10,000. And Sanjay became insolvent and only 50 paise recovered. कितना लेना बाकी था संजय से? 50,000. 50. All of you got that? Why not 60? Because Because you 10,000 goods returned ही 10,000 goods. रिटर्न हो चुका है. 10,000 का goods have been returned. तो सेल्स रिटर्न ऑलरेडी हो चुका है 10 का, तो अभी कितना लेना बाकी है? 50. तो एंट्री क्या होगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट to संजय अकाउंट. 25, 25, 50,000. So last will be combined. Right? Last one you can combine, even if you write it separately, it is fine. Okay, why you can combine? Because Sanjay is the common credit obviously, so you can combine. आप अलग लिखोगे ना तो भी चलेगा. क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ एंट्री थोड़ा सा अलग है. एक में गुड्स रिटर्न हो रहा है, एक में अकाउंट सेटल हो रहा है. तो आप अलग अलग लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चलेगा, कंबाइन भी और अलग. Okay. Thank you, sir. So clear with the homework sum? डिस्काउंट प्रकाश इंपॉर्टेंट था. जो भी पेंडिंग अमाउंट है उस पे ले लेने का डिस्काउंट. ओके. एंड हाउ डू यू कैलकुलेट किसी को कितना पैसा देना है? हाउ डू यू कैलकुलेट क्रेडिटर को कितना पैसा देना है? क्रेडिट माइनस क्रेडिट माइनस डेबिट. एंड हाउ डू यू कैलकुलेट डेटर से कितना लेना है? credit manager. उल्टा. डेबिट माइनस डेबिट माइनस Debit डेटर का minus डेबिट बड़ा credit. होगा ना, तो डेबिट माइनस क्रेडिट. क्रेडिटर का क्रेडिट ज्यादा होगा तो क्रेडिट माइनस डेबिट. यहाँ पे ये देखो ना, संजय का डेबिट ज्यादा होगा, तो संजय से कितना पैसा लेना था ये ढूंढना है. तो यू कैन सिंपली डू डेबिट माइनस क्रेडिट. संजय का डेबिट माइनस क्रेडिट. यस हेत, डाउट? तो मुझे एट एंट्री बताओ ना. पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट. एंट्री इज एडवर्टाइजमेंट टू कैश. क्रेडिट में क्या कैश टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं लिख सकता? कैसा टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे भाई? ये आप पे कर रहे हो ना एडवर्टाइजमेंट का, पैसा दे रहे हो उसको, एक्सपेंस पे कर रहे हो. एक्सपेंस पे करते वक्त या इनकम रिसीव करते वक्त पार्टीज नेम इग्नोर. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पेइंग? उधर एडवर्टाइजमेंट. मेंशन नहीं किया ना कैश से दिया है कि वो चेक से दिया है. वो तो नहीं किया तो कैश लिख देना. बट पेड दिया ना, पेड. ओके. पेड मतलब पैसा गया, कैश है तो कैश, चेक है तो बैंक. ओके सर. एनी अदर डाउट? नो सर. वीडियोस ऑन ऑल ऑफ यू. सर प्रकाशन को वाला जो पे उसको पे कर रहे हैं तो उसका 177 पे डिस्काउंट ले रहे हैं ना. 177 लेटर तो डेट पे वो आप जब जब भी पे कर रहे हैं तभी हम उसका जीएसटी क्यों नहीं कंसीडर करते? करना चाहिए, प्रैक्टिकली होता है, बट यहाँ पे थियरी में नहीं कर रहे हैं. कॉलेजेस आर नॉट फॉलोइंग, टेक्स्ट बुक इज आल्सो नॉट फॉलोइंग. थोड़ा सा रॉन्ग, बट यू विल हैव टू डू दैट. ओके. थैंक यू. तो अगर कॉलेजेस ने सपोज मेथड चेंज किया अब जब ओपन होंगे तब, तो सब क्योंकि एग्जाम एंड ऑल दे कंडक्ट, तो मार्क्स उनके हाथ में, तो देन वी कैन चेंज द मेथड. बट फिलहाल तो दे आर डूइंग दैट वे सिंस लास्ट ईयर, so we are also doing the same way. Okay, otherwise ideally क्या होना चाहिए? 1,50,000 पे होना, 1,50,000 पे, या 1,50,000 पे होना चाहिए डिस्काउंट प्रकाश वाले केस. ओके. बट फिर सर इसको सब्ट्रैक्ट 1,77,000 से करना है ना? सब्ट्रैक्ट 177, बट कैलकुलेट 150 पे होना चाहिए आइडियल. विदाउट जीएसटी पे डिस्काउंट होता है, गुड्स अमाउंट पे डिस्काउंट होता है, बट यहाँ पे नहीं है तो आपको फाइनल अमाउंट पे लेना है. 177 का 10%, 17,700. ओके, बढ़े आगे. सर कल टेस्ट है ना? कल टेस्ट है ना? कल कौन सा टेस्ट है? राजू सर में टेस्ट है. नहीं आप बोल रहे थे ना आप ये वीक विशाल टेस्ट सर. लेने वाले हो. कौन सा? Journal अरे का. भाई नेक्स्ट मंडे के बाद. ओके. 5-6 दिन पहले अनाउंस करेगा टेस्ट. डोंट वरी. ओके. संडे क्या सर? नहीं सर बाद में रखो थोड़ा आराम से.
Don't keep on नेक्स्ट replying. मंडे के बाद नेक्स्ट वीक में रहेगा, बताऊंगा मैं आपको। ओके सर। शीट ले लो। हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट 5 ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के असाइनमेंट शीट का प्रॉब्लम नंबर 4 का फर्स्ट 5 हमने किया हुआ था। अभी 6th वाले से कंटिन्यू करो। सी 4th वाले का 6th वन फंडामेंटली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एकदम ध्यान से सुनना, समझना। ऑल ऑफ यू ऑन द स्क्रीन नाउ, पे अटेंशन होएगा। ओके, रिची 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 प्लीज पे अटेंशन। 4th का 6th वन, पेड रेंट इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट मंथ। पेड रेंट इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ का अभी पैसा दे दिया, क्या होगा एंट्री आपका? प्रीपेड रेंट। विल यू राइट रेंट टू कैश? प्रीपेड रेंट। Prepaid rent to Prepaid. rent. to cash account. Why not rent to cash? बिकॉज ये जो है एक्सपेंस अभी we इनकर paid नहीं हुआ। previously. हाँ, इनकर नहीं हुआ। जब इनकर होता है तभी रिकॉर्ड करते हो, याद है अक्रूवल सिस्टम। अक्रूवल सिस्टम क्या बोलता है? जब भी एक्सपेंस का टाइम आए ना तभी उसको डेबिट करना, इनकम की टाइम आए तभी उसको क्रेडिट करना, पहले नहीं। इससे क्या होगा? इससे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और कंसेप्ट फॉलो होता है, दैट इज मैचिंग कंसेप्ट। Did you remember what was matching concept? Do you remember what was matching concept? We discussed matching concept. Never calculate your profits in advance. No, that was conservative. Matching. Time to time we have to डेबिट से calculate. क्रेडिट मैच होना चाहिए। हाँ, मतलब इनकम से एक्सपेंस मैच होना चाहिए आपका। जब प्रॉफिट लॉस आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, तभी मैच योर इनकम्स विथ योर एक्सपेंसेस। एक साल का इनकम ले रहे हो तो सामने एक ही साल का एक्सपेंस, तो एक ही साल की इनकम्स आपको क्रेडिट में दिखानी है और एक ही साल का एक्सपेंस आपको डेबिट में दिखाना है। ऐसा कर, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो यहां पर ये रेंट नेक्स्ट मंथ का है, इस महीने का नहीं। इस महीने का होता ना तो मैं रेंट टू कैश कर देता, एक्सपेंस को डेबिट देते। नेक्स्ट मंथ का अभी कर रहा हूं, तो आई वोंट यूज रेंट टू कैश, आई विल राइट prepaid rent to cash. I'll write prepaid rent to cash. Now, why prepaid rent? Because expense का time अभी तक नहीं आया। तो अगर मैं अगले साल का, अगले महीने का एक्सपेंस अभी दिखा दूं तो मैचिंग कंसेप्ट वायलेट हो जाएगा। मेरे को क्या दिखेगा? एक साल का इनकम और 2 साल का एक्सपेंस। कैन आई मैच 1 ईयर का इनकम विद 2 ईयर का एक्सपेंसेस? No. नेक्स्ट वाला भी अभी दिखा दो एक्सपेंस, ऐसा मैचिंग कर सकता हूं? नहीं कर। इससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है? आपको करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं मिलेगा और आप कंपैरिजन भी नहीं कर पाओगे। आपको अगर जानना है कि आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो कंपैरिजन विल बी ऑल डिस्टॉर्टेड। मुझे एक बात बताओ, क्या आप 3 महीने की इनकम और 6 महीने के एक्सपेंस को मैच कर सकते हो? क्या आपको करेक्ट प्रॉफिट लॉस मिलेगा? क्या आप उसको कंपेयर कर पाओगे हर साल? कभी आपने 6 महीने का एक्सपेंस 12 महीने का इनकम लिया, कभी 2 साल का इनकम 1 साल का एक्सपेंस लिया। ऐसे लॉपसाइडेड वे से आप कभी अपने रिजल्ट को कंपेयर नहीं कर पाओगे। आर यू अंडरस्टैंड? तो कंपैरिजन पॉसिबल हो, इसके लिए मैचिंग बहुत जरूरी है। मैचिंग बहुत जरूरी है। ओके, मैचिंग मतलब कुंडली मिलाने वाली मैचिंग नहीं, तुम्हारी मैचिंग ऑफ इनकम विथ योर एक्सपेंसेस। मैचिंग ऑफ इनकम विथ योर एक्सपेंस। ओके, अगर आपको 3 महीने का प्रॉफिट लॉस ढूंढना है, अगर आपको 3 मंथ्स का प्रॉफिट लॉस ढूंढना है, तो आप क्या करोगे? कितने टाइम की इनकम लोगे? 3 मंथ्स की। 3 महीने। और एक्सपेंस कितने लोगे? 3 मंथ्स के। ओके, उनको मैच करो और उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लो। इज दिस क्लियर? सो दैट्स व्हाई ऑलवेज रिमेंबर, whenever you debit your expense,
इट शुड बी ऑन इनकर्ड बेसिस. इनकर्ड मतलब एक्सपेंस का हो चुका होना चाहिए. एक्सपेंस इनकर्ड, जैसे सैलरी है, वर्कर का काम हो चुका होना चाहिए. टेलीफोन है, टेलीफोन का बिल वापर लिया है टेलीफोन, तो वो इनकर हो गया है, तो टेलीफोन डेबिट होना चाहिए. ओके, पैसे आप आगे पीछे दो, प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सपेंस का जैसे टाइम आए वैसे डेबिट करना है उसको. तो यहां पर क्या रेंट का टाइम आया था अभी तक? No. नहीं आया था, मैंने टाइम से पहले पे कर दिया, तो कैन आई डेबिट रेंट एज माई एक्सपेंस? आई कैन नॉट. ओके, आई कैन नॉट डेबिट. सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रीपेड रेंट टू कैश करूंगा. अब नेक्स्ट मंथ आ गया, समझो नेक्स्ट मंथ आ गया. नेक्स्ट मंथ में तो रेंट का टाइम आ गया, क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ का रेंट था. तो नेक्स्ट मंथ में मुझे रेंट झक मार के डेबिट करना पड़ेगा. आई विल हैव टू डेबिट रेंट. लेकिन विल आई पे कैश अगेन फॉर दिस रेंट? Prepaid rent. No. So how will I adjust it? I will adjust it via prepaid rent. I will adjust it via prepaid rent. इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री. ये आपको करनी पड़ेगी नेक्स्ट मंथ. Sir, such a entry for outstanding rent will be I'll come. outstanding rent to rent. हाँ, यस, आउटस्टैंडिंग रेंट. आउटस्टैंडिंग रेंट टू कैश, क्योंकि पहले आपने रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट मारा है, तो फिर अच्छा, आउटस्टैंडिंग okay. रेंट टू कैश होगा. आई कम टू दैट. तो फिलहाल ये पार्ट समझो. रेंट टू प्रीपेड रेंट करके यू विल एडजस्ट दिस अमाउंट. इज दिस क्लियर? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर एडजस्टमेंट एंट्री. ओके, क्यों करना पड़ा अपने को? क्योंकि हमने प्रीवियस मंथ में इस महीने का पैसा दे दिया था, तो वापस पैसा नहीं देंगे. समझ में आ रही है बात? तो वापस अभी खाली रेंट डेबिट होगा, प्रीपेड रेंट से क्रेडिट करके एडजस्ट करेंगे. तो इधर ध्यान से देखोगे ना, तो ये प्रीपेड कट हो रहा है. So what are you left with? What are you left with? Rent to cash. बेसिक एंट्री वही है, रेंट टू कैश, लेकिन दो पार्ट्स में करना पड़ा अपने को. क्यों दो पार्ट्स में करना पड़ा? टाइम से पहले पैसा दे दिया था इसके लिए. सेम थिंग यू कैन अप्लाई टू परचेजेस. आप नॉर्मली क्या करते हो? आप गुड्स को क्रेडिट पे खरीदते हो और फिर आप पेमेंट करते हो. आपने अजय से गुड्स क्रेडिट पे खरीदे, तो आपने क्या एंट्री की होगी? परचेज टू अजय 5000. फिर आप अजय को पैसे देते हो, तो अजय टू कैश 5000, है ना? इसके जगह समझो आपने कभी एडवांस में पेमेंट कर दी. ऐसा भी होता है, सुना है एडवांस? एडवांस में भी होता है पेमेंट. तो आपने पहले ही अजय को 5000 दे दिए और बाद में गुड्स खरीदे, ऐसा भी हो सकता है. तो पहले अगर अजय को पे कर दोगे तो एंट्री क्या करोगे? अजय टू कैश करोगे पहले 5000, और बाद में गुड्स खरीदे, तो बाद में एंट्री क्या होगी? परचेज टू अजय 5000. यही कर रहा हूं मैं, यही ये प्रीपेड रेंट है. आप रिलेट करो इसको. रेंट क्या था? एक्सपेंस. परचेज क्या था? एक्सपेंस. बोथ वेर एक्सपेंसेस. रेंट वाज आल्सो एक्सपेंस, परचेज वाज आल्सो एक्सपेंस. यस और नो? अजय कौन था? डेटर. एसेट था. प्रीपेड रेंट इज आल्सो एसेट. एडवांस में दे दिया, प्रीपेड रेंट टू कैश, तो इधर अजय टू कैश. बाद में एक्सपेंस इनकर हुआ, तो रेंट टू प्रीपेड रेंट, तो परचेज टू अजय. सेम एंट्री है, खाली नाम बदल दिए मैंने. प्रीपेड पार्ट के जगह अजय लिख दिया और रेंट के जगह परचेज लिख दिया. आर यू गेटिंग दिस लॉजिक? भी याद रखना, कभी भी कोई भी खर्चा आप टाइम से पहले पे करोगे तो डोंट राइट एक्सपेंस टू कैश. व्हाट विल बी योर जर्नल एंट्री फॉर दैट? What will be your journal entry for that? Prepaid expense to cash. Prepaid expense To cash. Prepaid expense to cash. And then when you adjust that, expense, what will be the entry? Expense to prepaid expense. Expense to prepaid expense. Hope that is clear. Sir, can we have prepaid incomes also? Pre-received income होती है, वो आएगा अभी 10th एग्जाम्पल में, वही बता रहा हूं मैं, आगे आ रहा है. पहले ये बात क्लियर हो गई प्रीपेड एक्सपेंस वाली सबको? अभी एनी डाउट? क्यों करते हो ये लफड़ा सब? मैचिंग अल्टीमेट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. मैच योर इनकम विथ योर एक्सपेंस. इनकम वही क्रेडिट होनी चाहिए जो करंट ईयर की है, एक्सपेंस वही डेबिट होना चाहिए जो करंट ईयर का है. ओके, अगला पिछला के लिए अपने पास आउटस्टैंडिंग अकाउंट और प्रीपेड अकाउंट है सेपरेटली. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो आगे क्या दिया है. What is given in the next one? 7th one.
पेड इनकम टैक्स बाय एनईएफटी, बताओ क्या एंट्री करोगे? Drawings to bank. Drawings to bank. Very good. All of you got this because income tax is what type of expense for a sole proprietor? Income tax is a His own expense. personal It's a expense. personal expense. Drawings to bank will be 100 rupees. Drawings to bank will be 100 rupees. Hope that is clear. Then next one is paid house rent to landlord. इसका भी क्या होगा? Very simple. Drawings to cash. Drawings to bank. Drawings to cash. Cash. By bank. कुछ नहीं दिया है तो कैश, चेक दिया है तो बैंक, एनईएफटी दिया है तो बैंक. यहाँ तक क्लियर? पर्सनल एक्सपेंस, इनकम टैक्स, ड्रॉइंग्स. रिसीव्ड कमीशन फॉर नेक्स्ट ईयर इन एडवांस. रिसीव्ड कमीशन फॉर नेक्स्ट ईयर इन एडवांस. अब सोचना ध्यान से कि आपको ये साल का कमीशन मिला है कि नेक्स्ट ईयर का एडवांस? Next year. तो क्या एंट्री करोगे? सोचो Cash जरा. to pre-received commission. हाँ, कैश तो आ गया है. डेबिट व्हाट कम्स इन, रोकड़ा तो आ गया है. कैन यू क्रेडिट कमीशन? No, because No. that income isn't incurred. Isn't next साल income लगेगा. yet. That income will get incurred, earned in the next year. Next year. Income will be earned in the next year. Okay. So I cannot use commission account. So which account should I use? Commission received in advance account. I will use commission received in advance account. I'll give you a simple Pre-received आएगा sir. sorry, pre-received भी लिख सकते हो. Pre-received commission भी लिख सकते हो. Pre-received commission भी लिख सकते हो या commission received in advance. Okay. अभी आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं. इस साल 50 स्टूडेंट्स हैं. 50 स्टूडेंट्स की फीस है 10,000 रुपीज पर स्टूडेंट. तो मेरी टोटल इनकम कितनी हुई साल की? 50 स्टूडेंट टू 10,000, 5 लाख रुपीज हुआ. 5 लाख. 5 लाख रुपीज इज इनकम. ओके. उसमें से समझो मेरे खर्चे वर्चे हो गए 2 लाख रुपीज. ओके. तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख रुपीज हुआ साल का. करेक्ट. तो मैं टैक्स किस अमाउंट पे करूंगा गवर्नमेंट को? 3 lakh. 3 लाख रुपीज पे टैक्स पे करूंगा मैं गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स. ठीक है. अभी कोई स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे नेक्स्ट ईयर का फीस अभी दे दिया. सम ऑफ यू ओनली 12th स्टैंडर्ड फीस यू हैव गिवन मी राइट नाउ. सो इज दैट 12th स्टैंडर्ड गोइंग टू स्टार्ट दिस ईयर और इट विल स्टार्ट इन नेक्स्ट ईयर April? Next year. Next year. That money, suppose I have got 30,000 rupees extra from you. So that 30,000 is this year's income or next year's income? Next year. Yes, Next yes. year's Next income. year. So क्या मुझे टैक्स डिपार्टमेंट वाला ऐसा बोल सकता है कि भैया आपको तो 5,30,000 मिले हैं, तो आप अभी 5,30,000 माइनस 2 लाख, 3 लाख और 30,000 रुपए पे टैक्स भरो, 3,30,000 पे टैक्स भरो. क्या कि ये सही बात होगी? नहीं, क्योंकि that is not your No. income. हाँ, that is not my current year's earned income. टैक्स डिपार्टमेंट भी ऐसे ही काम करेगा. तो अगर वो टैक्स वाला मुझे बोलता है तो मैं बोलेगा नहीं भैया नहीं, ये जो 30,000 है ये मेरी करंट ईयर की इनकम नहीं है, ये मेरी कौन सी इनकम है? नेक्स्ट ईयर की इनकम है. तो मैं ये टैक्स खाली 3 लाख रुपए पे ये साल पे करूंगा. वो 30,000 पे करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली कब करूंगा? नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर इनकम है, नेक्स्ट ईयर इनकम माइनस एक्सपेंस, जो आएगा प्रॉफिट उस पे आई विल पे द टैक्स. आर यू गेटिंग दिस कांसेप्ट? सो But दिस this इज pre-received income is like a liability. exactly, it's a incurred, liability. जैसे prepaid rent was an asset, pre-received income is a liability for me. Why it is a liability? मेरे को एडवांस में पैसा आ गया. It's like I've taken You are supposed to give the benefits in and the I'm future. supposed to give the benefit. मुझे obligation है, मुझे पढ़ाना बाकी है, benefit देना बाकी है in future. Next year आप मुझे ये 30,000 नहीं दोगे अगर आपने अभी दे दिया है तो, right? तो मुझे अभी मेरे साइड से कुछ सर्विस देनी बाकी है. So that's my liability. Is this clear? So income received in advance is a liability, whereas prepaid expense is your asset. हमें फर्क समझ आ रहा है? प्रीपेड रेंट एसेट क्यों था? एडवांस में दे दिया है, बेनिफिट मिलना बाकी है. एंड प्री रिसीव्ड इनकम मतलब आ गई तो इनकम नहीं बन जाती, टाइम से पहले आई हुई है, आपकी ये साल की इनकम नहीं है. ओके. तो दैट्स योर लायबिलिटी, आपको बेनिफिट देना बाकी है. अब इसमें भी वो एडजस्टमेंट एंट्री आपको करनी पड़ेगी. देखो अभी आपको टाइम से पहले इनकम आई, इसके लिए आपने कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट किया.
लेकिन नेक्स्ट ईयर जब इनकम का टाइम आएगा तो आपको झक मार के कमीशन को क्रेडिट करना पड़ेगा, तब आप डेबिट किसको दोगे? विल यू रिसीव कैश अगेन? Commission in received advance. कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस को डेबिट दे दोगे, ये एंट्री करोगे, इसको बोलेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। ये नेक्स्ट ईयर करेंगे हम लोग जब कमीशन का टाइम आ गया, तो कमीशन क्रेडिट होगा और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस डेबिट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? यहां पर भी अगर आप चेक करो तो नेट इफेक्ट क्या है? ये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कैंसिल हो गया ना, डेबिट क्रेडिट। व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? कैश टू कमीशन। बेसिक एंट्री वही है, पैसा आया, कमीशन इज इनकम, बट दो टुकड़ों में करना पड़ा अपने को। वाई टू पार्ट्स? क्योंकि पैसे पहले आ गए थे और इनकम बाद में जनरेट हुई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज दिस क्लियर? ये प्रीपेड और रिसीव्ड इन एडवांस का कंसेप्ट समझ में आया क्या है? प्रीपेड, कभी भी एडवांस में एक्सपेंस पे करोगे तो एंट्री क्या होगी? प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश। और एडवांस में इनकम रिसीव होगी तो एंट्री क्या होगी? कैश टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, हम लोग ये मंथली पे दिखा रहे हैं क्योंकि आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है। जनरली बिजनेस मंथली का झंझट में नहीं जाते हैं, वो लोग ईयरली देखते हैं। ओके, मतलब इस साल में आपको अगर नेक्स्ट ईयर की इनकम के टैक्स आप पूरे साल का पे करते हो ना, टैक्स, इनकम टैक्स आप साल के एंड में पे करते हो, आप थोड़ी हर महीने इनकम टैक्स पे करते हो, आप साल के एंड में पे करते हो। तो अगर नेक्स्ट ईयर की इनकम अभी आ गई तो प्री रिसीव्ड, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस अभी पे किया तो प्रीपेड। एक साल के अंदर 12 महीने में ना ये झंझट नहीं रखते हैं बिजनेस वाले। मतलब आप जनवरी का फरवरी में करो, फरवरी का मई में पे करो, मई का फरवरी में पे करो, जून का जुलाई में पे करो, जुलाई का जून में पे करो, आपका एंट्री एक्सपेंस टू कैश ही होगा, क्योंकि 12 महीने के अंदर आ गया, 12 महीने के ब्रैकेट के अंदर आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब नेक्स्ट ईयर का पैसा आप अभी रिसीव कर रहे हो तो वो प्री रिसीव गिना जाता है, और इस साल का पैसा आप नेक्स्ट ईयर का पैसा आप अभी पे कर रहे हो तो वो प्रीपेड गिना जाता है जनरली। ओके, ये आपको थियोरी में मंथली बेसिस पे भी है सेम कंसेप्ट। तो मंथली बेसिस पे थियोरिटिकली होता है, आपको एंट्रीज में ऐसे होता है, अभी ऐसे ही करना, मंथली बेसिस पे हो तो भी प्रीपेड यूज करना, प्रीपेड और प्री रिसीव। बट प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकली बिजनेस मंथली बेसिस के झंझट में इतना नहीं पड़ता, ईयरली देखा जाता है, वो ईयरली बेसिस पे देखा जाता है, प्रीपेड और प्री रिसीव। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। सो यहां पर अपने को ईयरली नहीं है, थियोरी में हम लोग मंथली भी लर्न कर रहे हैं। तो मंथली मतलब क्या? जनवरी में भी अगर आपको फरवरी का पैसा आ गया तो कैश टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कैश टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और फरवरी में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस टू इनकम, एडजस्टमेंट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस टू इनकम। ओके, मंथली बेसिस पे भी यू हैव टू डू ओवर हियर। सो नेक्स्ट वन, 10th वन देखो क्या दिया? अवर बैंक इन्फॉर्म दैट इट हैज कलेक्टेड डिविडेंड ऑन अवर बिहाफ एंड पेड टेलीफोन बिल ऑफ 200। बैंक ने अपने को इन्फॉर्म किया, अपना ही बैंक है जिसमें अपना खाता है, उसने डिविडेंड कलेक्ट किया, एंट्री हो गया अपने डिविडेंड कलेक्ट करने की। व्हाट इज डिविडेंड फॉर अस? Income. Dividend to bank. Bank to dividend. Dividend to bank. Dividend to bank. Bank to dividend. बैंक टू डिविडेंड बिकॉज इट हैज कलेक्टेड कैश अंदर आ रहा है। डिविडेंड क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस? इनकम है। डिविडेंड का भी एक्सपेंस हो सकता है आपके लिए। क्या आप Bank to dividend. क्या आप रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, क्या आप टाटा कंपनी हो, क्या इन्फोसिस हो? No. नो, आपने तो इन्वेस्ट किया हुआ है ना शेयर्स में, तो आपको डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड इज योर इनकम। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया टू डिविडेंड अकाउंट। अब वो कंफ्यूज मत होना कि सर बैंक ने कलेक्ट किया, हमने तो किया नहीं है। अरे भैया, बैंक अपना ही तो है, अपना ही खाता बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक ने कलेक्ट किया मतलब अपने बैंक अकाउंट में आया पैसा, सिंपल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम क्रेडिट करो 100 रुपया। अच्छा, उसके आगे दिया है दे पे टेलीफोन बिल ऑन अवर बिहाफ। अभी ऐसा मत समझना वो बाजू वाला पे कर रहा है, वो अपना ही बैंक है, अपना ही बैंक में से पैसा जा रहा है फॉर टेलीफोन बिल। तो क्या एंट्री होगा टेलीफोन बिल का?
Telephone bill account debit to bank account. Telephone expense या telephone charges to bank account. Can I club these two entries? No. By telephone expense? No. No, one is income एक and income other है और is एक expense. expense. One is expense. एग्जाम पे ये गड़बड़ हो गई थी काफी लोगों की. एक मैंने टेलीफोन डिपॉजिट दिया था, एक डिविडेंड दिया था, सबने मिक्स कर दिया. सर एक लाइन में दिखा तो मिक्स कर दिया आपने. अरे भैया एक लाइन में तो परचेज और सेल भी दिखेगा, तो क्या परचेज टू सेल की एंट्री कर दोगे? ऐसे मिक्स नहीं कर सकते आप. ओके, एक्सपेंस एंड इनकम यू कैन नॉट क्लब. रिमेंबर, ऑपोजिट एंट्रीज. परचेज एंड सेल यू कैन नॉट क्लब. Sir, हाँ, whenever we receive, bank is collecting means it's getting transferred in our account. No? exactly. Bank is collecting, so it is getting transferred directly to our bank account, current account. पर वो Bank अपने is आप the नहीं receipt. होता. अपने आप ही होता है, अपने आप ही होता है. लेकिन हम ये बुक्स ऑफ अकाउंट तो हम मेंटेन कर रहे हैं ना, तो हाँ, हमारे तो जर्नल में. मतलब बैंक has collected. हाँ, बैंक तो पासबुक में दिखाएगा. आपको बताया था ना, पासबुक. पासबुक हाँ, पासबुक कौन बनाता है? the bank. बैंक. पासबुक इज मेड बाय द बैंक. हम लोग नहीं बनाते. हम लोग क्या बनाते हैं? अपना जर्नल लेजर बनाते हैं. यहाँ पे में तो अपने को एंट्रीज रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, अपना रिकॉर्ड. दैट इज बैंक टू डिविडेंड. गॉट इट? Okay, thank you. Then next one, after fourth come to sum number 9. इसमें कोई डाउट है और फोर्थ सम में किसी को? Any doubt in problem number 4? Anyone? Prepaid, received in advance. Okay. And income expense don't club. और बैंक ने किया तो टेंशन मत लेना, बैंक अपने बिहाफ पे करता है. तो बैंक ने किया मतलब बैंक में पैसा आया, और पे किया तो बैंक से पैसा गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 देख लो अभी. Question number 9, I want you all to try on your own, including 29th one. 29th one is slightly difficult. Let's see who gets it. बाकी 28 तक तो हमने सब किया हुआ है क्लास में, 25th तक. तो क्वेश्चन नंबर 9 इन द बुक्स ऑफ सुजैन. वो ऊपर एक अकाउंटिंग इक्वेशन भी दिया है, वो नहीं करना है, खाली जर्नल करना है आपको. अकाउंटिंग इक्वेशन नेक्स्ट लेक्चर से मैं पढ़वाने वाला हूँ आपको, तब करेंगे. पेज से सर हैं? न्यू जो है पेज उससे कि कंटिन्यू करो, नो प्रॉब्लम. Question 9 in the books of Suzanne. In the books of Suzanne. No narrations, only entries. Start. I want you all to try this sum on your own. We have done all the transactions. All we have done. दिमाग चलना चाहिए, और यही लेवल आएगा टेस्ट में आपको. So see to it you get all the entries till 20. What is the month and this thing? No Because month. dates are given. No month, no year. Just write 1, 2, 3, 4, whatever they are. Practice only. Find out. करो solve. ध्यान से करना एकदम. Doubts हो तो ask me.
So with narration or without narration? Without narration, no narration. Did you get any email from the college that your admissions have been cancelled? No, sir. So news तो आया No, है. sir. Maharashtra government has cancelled the admissions. FYGC. जिसका हुआ है अभी तक वो भी. कोटा भी. सर, 0 राउंड का भी कैंसिल होगा तो फिर सबका सॉरी. लोग का कोटा भी कैंसिल गया. होगा. हाँ आई थिंक माइनॉरिटी का भी कैसे देखते हैं ये लोग. गुज्जू माइनॉरिटी आई थिंक शुडंट बी अफेक्टेड. बाकी जनरल लिस्ट का जिसका एडमिशन हुआ है दैट विल बी कैंसिल्ड. सर ये मराठी माइनॉरिटी का कुछ इशू है ना. हाँ मराठा 16% था ना वो कैंसिल हो गया रिजर्वेशन. सर लेकिन फीस भर दिया है. फीस दे विल रिफंड. ना फालतूगिरी है ना इधर. सैड इट इज. स्टूडेंट लोग का सब बैंड बजा के रख दिया. सर वो तो शायद से सिर्फ सेकंड लिस्ट के लिए हुआ था ना इन लोग का. हाँ कल न्यूज आया ना अभी पूरा एडमिशन ही कैंसिल किया है. अगेन दे विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ एडमिशन. मेरे को तो लगता है पूरा साल के एंड तक एडमिशन ही लेते रहे. वही सर कॉलेज कभी शुरू होगा. एडमिशन खत्म होते होते दिसंबर आ जाएगा ऐसा लगता है. ये 0 राउंड में भी वो लोग ने पूरा अगस्त वेस्ट कर दिया तो मतलब सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट तो बहुत टाइम जाएगा. हाँ it got extended for 1 month again now. What was going to happen in August will happen in November. Yes. ये पूरा साल तो गया. नेक्स्ट ईयर का भी 6 महीना गया मतलब. हिस्टोरिक बैच होएगा तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड इन कोरोना. पूरा जिंदगी भर याद रहेगा 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड. So when will you start classes? Which offline? Yes. अपना तो we have ready everything. We should get the permission na to make students sit. Social distancing measures and all they have introduced. But once the Maharashtra government allows schools and colleges to reopen, then we can start. Permission ही नहीं है ना. And parents are also skeptical अभी. हाँ. Sir, means in all colleges now Marathi quota will come. मराठी कोटा क्या था. 16% मराठा कोटा था पहले. वो ड्यू टू दिस पैंडेमिक दे कैंसल्ड.
So now they have appealed again to bring the quota. As of now, it has been cancelled for this year. But they are appealing. So they have cancelled the admission process and everything. And abhi case chalu hai. Now let's see what judgment comes. If they keep, again they allow, then 16% Maratha quota will come. सर वो हमें कुछ अफेक्ट नहीं करेगा ना गुजराती हमें मतलब minority वाले तुम्हारा लोग को? प्रोसेस लेट होएगा एडमिशन का, कॉलेज लेट होएगा. तो हम लोग का तो हो गया है तो हम लोग को वो कुछ नहीं कैंसिल हो होगा गया ना तुम्हारा. अभी वो माइनॉरिटी का क्या सीन है, वो तुमने माइनॉरिटी में लिया है ना, गुज्जू माइनॉरिटी में. हाँ 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 तो होपफुली गुज्जू माइनॉरिटी विल नॉट बी अफेक्टेड, बट इन जनरल इट विल बी अफेक्टेड. चलो डन. तो सर बाकी है अभी. मेरा तुम्हारे से पहले हो गया फटाफट. सर लास्ट बैच का है ये. चेक द आंसर्स. सर थोड़ा जूम करो ना. कौन सा एंट्री, थर्ड फोर्थ? फोर्थ. Check the solution, check the amounts. Third and fourth were very important. Third and fourth खुद से आना चाहिए. Don't copy, हाँ. Do it on your own. It's all practice. Do it on your own. Solve it on your own. आया थर्ड और फोर्थ आ रहा है सबको? TD/CD GST वाला अमाउंट्स कैलकुलेशन. थर्ड एंड फोर्थ, एनी डाउट एनीवन? प्लीज आस्क. फर्स्ट एंट्री समझा, वो 1/3 आउट ऑफ विच बोरोड था. सर फर्स्ट एंट्री के अमाउंट्स बताओ ना. क्या है, मिस्टेक है विनिशा? हाँ मेरे को ये में 15% विशुअल लोन अकाउंट का ये रॉन्ग आ रहा है. क्या आया अमाउंट? मेरे को 1057 कुछ आ रहा है. 1/3 है ना, 1/3 ऑफ द कैश वाज बोरोड. तो टोटल कैश कितना आया है? 42 आया है ना. हाँ 42 का 1/3, 14,000 इज लोन. समझे? कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क. डोंट जस्ट ब्लाइंडली कॉपी एंड फिनिश इट. ऐसा
ओके, दीज आर ऑल प्रैक्टिस, यही सम आएंगे टेस्ट में, वापस फिर टेस्ट के बाद सॉल्व करना पड़ेगा 2-2 बार। इससे अच्छा अभी क्लियर कर लो, अच्छे से समझ के करो। कैलकुलेशन, अमाउंट, एवरीथिंग। सर मुझे फोर्थ वाला नहीं आया, मतलब मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ उसमें। क्या किया तुमने? देखो फोर्थ वाले में पे 8% टीडी है। 3680 पे टीडी लेना है ना? हाँ 3680 पे 80 पे सीडी। हाँ इस पे लेना है। क्यों Sir, 36? in this I took 3-1, 3-3-1 and 3-3-2 okay. That is okay, 1 rupee ऊपर नीचे is fine, but the method is important. पहले 4000 पे you take TD, you get net amount, उस पे you take GST, you get 4342, and then when you have to take 5% CD, वो 5% CD किस पे करोगे? Will you do it on 4342 or 3680? 3680. 3680. After TD value पे you calculate CD. Remember, GST पे CD नहीं लेना है। Sir, can you show that fan वाला sum नीचे? Sir, Entering down. Yeah. सर फोर्थ वाले में मैंने 331 और 332 किया था, तो मैंने हाँ। कैंसिल किया हुआ फिर। अरे तो चलेगा वैसा? 331 331 रखो, 331 332 रखो, एक 332 331 चलेगा, 331.5 331.5 वो भी चलेगा। अभी समझा? हेलो, सीडी का पार्ट समझा? इसमें भी यही किया है, थर्ड वाले में भी देखो। थर्ड वाले में क्या था? 1/3 वाज बैंक एंड 2/3 वाज क्रेडिट, दिख रहा है? तो ये सीडी जो लेना है ना 4%, ये किस पे आएगा? 9000 के 1/3 अमाउंट पे आएगा, 3000। आफ्टर टीडी वैल्यू पे यू कैलकुलेट सीडी। आफ्टर टीडी वैल्यू, व्हाट वाज आफ्टर टीडी वैल्यू? 9000। 9000 का 1/3 वाज बैंक के थ्रू ना, तो 1/3 इज 3000। 3000 पे 4%, दैट इज 120 rupees. Is it clear? So remember that. माइनस वहीं से करना है, बट कैलकुलेट आफ्टर टीडी वैल्यू पे करना है। कैलकुलेशन विल बी ऑन आफ्टर टीडी वैल्यू। सर ये जो फैन वाला है उसको सन्ड्री एक्सपेंस में डाल सकते हैं? नहीं, ऐसा फैन इज व्हाट, एक्सपेंस और एसेट? हाँ एसेट। इट विल लास्ट ना फॉर मोर देन अ ईयर। यस। सन्ड्री एक्सपेंस तो एक्सपेंस है, छोटा सा एक्सपेंस, नॉमिनल, स्मॉल अमाउंट। हर्षिता, जमा पेपर वापस सॉल्व किया वो? हाँ, सेकेंड टाइम किया तो सिली मिस्टेक देखा मैंने, सब किया मैंने। और होमवर्क भी राइट था? होमवर्क आया खुद से? हाँ बराबर था, मिस्टेक नहीं था ना कुछ? होमवर्क में मैंने हाईलाइट नहीं किया ना कुछ? हाँ, मैंने वो 99,000 के हाँ, ब्रोकरेज 1,01,000 लिखा था तुमने। किया था, आंसर 99 आया बट लिखा 9 था। लिखा 9,000, ओके। ध्यान देना उधर, स्कोर फुल, थोड़ा एफर्ट्स डालो।
So just confirming again, whenever we are calculating GST on sales, so we have to first take it on after TD वाला amount ना, Yes. और GST amount से subtract करना है ना. Yeah, After GST amount से subtract होगा ना. CD ना, CD will be हाँ, subtracted हाँ. from after GST but calculated on after TD amount. Yes. बराबर. इधर भी देखो ना, 3680 है ना आफ्टर टीडी अमाउंट. हाँ. मैंने 3680 पे 5% लिया हुआ है यहाँ पे. दैट इज 184. 130. हाँ. 184. हाँ. मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक था. But you would have taken it on 3680. Subtract from 4342, you get 415. तो कैश 415 only, no? Yeah, cash is 415. देखो ना एंट्री है ना नीचे. Cash is 415. Practically in the bills, they usually specify that they are rounding of these amounts. They consider the points also. जनरली 2 डेसिमल तक कोई रखते हैं या राउंड ऑफ ही कर देते हैं. कोई बड़े बिजनेसेस है तो सीधा 10 रुपीज पे राउंड ऑफ कर देते हैं. सम स्मॉल बिजनेसेस 1 रुपी पे दे राउंड इट ऑफ. हाँ. But they always specify in the bill that they are doing. हाँ, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट रुपी ऐसा लिखा रहता है वहाँ. सर लास्ट वाले का एंट्री क्या है? लास्ट वाले का मैं डिस्कस कर रहा हूँ. सेकंड लास्ट तक आ जाओ पहले. सेकंड लास्ट तक आ गए सर लास्ट वाला मैंने कर दिया, मेरा चेक. क्या करा है, क्या लिखा है बोलो. अजय अकाउंट डेबिट टू पारेश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. बराबर, करेक्ट. Sir, I didn't get the 8th one. 8th one. Yes. 8th one में क्या दिया है, देखो. Sold personal investments of 50,000 for 45,000 and invested, out of which invested 40,000 in the running business, in the business. तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट सेल करने का कोई एंट्री आएगा? पर्सनल गया, कुछ नहीं. वी आर नॉट बॉदर्ड. एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है. और उसमें से सॉरी बिजनेस में क्या लाया? व्हाट डिड यू इंट्रोड्यूस इन बिजनेस? Cash. 40,000. Yes. कैश आया, ओनर इज द गिवर. So cash to capital. कैश टू कैपिटल. Okay. ओनर ला रहा है वो कैपिटल, ओनर लेके जा रहा है वो ड्राइंग. पर्सनल कुछ भी बेचा खरीदा उसका नो एंट्री इन द बिजनेस बुक्स. देव गहलोत, एंट्री आ रही है? हाँ सर, लास्ट वाला ट्राई करो. चलो लास्ट वाला सब लोग ट्राई करो. रुद्र पटेल, विनीशा, रिची है कि रुचि है? रुचि. अमया मोरे का काफी मिस्टेक्स हुआ था टेस्ट में. अमया मोरे, वरुण तलनकर, वीरती. ओके, नेक्स्ट टेस्ट परफेक्ट चाहिए अभी. हेत गजरा, Sir, या sir, can I keep my video off क्योंकि फोन से ये ठीक है चलेगा. करना पड़ा तो वो देखना पड़ेगा पीडीएफ. चलेगा ठीक. So for हाँ, last मैंने भी transaction, video it will be Ajay account debit to Paresh account discount receipt account. बराबर है. अजय टू परेश टू डिस्काउंट रिसीट. करेक्ट. सर मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है तो मैंने भी वीडियो ऑफ रखा है. हाँ समझ रहा है मेरे को. जो कोने में बैठे हैं सबका इंटरनेट कनेक्शन वीक है यहाँ पे, को दिखाई देता है. यशराज, वर्क हार्ड. नेक्स्ट टेस्ट. दियांशी, यस सर. वर्क हार्ड. यस सर.
चलो हो गया सबका ये सम। लास्ट एंट्री में डिस्कस कर रहा हूं अभी, बाकी एंट्रीज देख लो। एनी डाउट इन एनी अदर एंट्री? फिटिंग्स वाला एंट्री आया सबको? फिटिंग्स फैन वाला समझा? 2 फैंस खरीदे थे आपने, 1 फॉर होम 1 फॉर ऑफिस। ऑफिस में आ रहा है वो फिटिंग, घर पे जा रहा है वो ड्रॉइंग्स। एंड हाउ आर यू पेइंग द मनी? कैश। कॉस्ट ऑफ ईच फैन इज हाउ मच? 750 रुपीज प्लस द फिटिंग चार्जेस, दैट विल बी 775। तो फिटिंग्स एक फैन बिजनेस में आया, एक जो घर पे गया ड्रॉइंग्स टू कैश 1550। इज दैट क्लियर? Instead of scooter, if we write vehicle account or something. Yeah. Scooter के जगह you can write vehicle account. You can use vehicle account. Absolutely. और जब हम लोग शेयर्स बेचे तो ऐसे लिख सकते हैं सेल ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर अकाउंट। नहीं, बैंक टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर। जब तुम फर्नीचर बेचते हो तो क्या एंट्री करते हो? कैश टू फर्नीचर, है ना? तो वैसे जैसे फर्नीचर इज एन एसेट, शेयर्स आर आल्सो एसेट, सेम अकाउंट। खरीदा तो भी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बेचा तो भी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ओके सर। बिल्डिंग है तो कैश टू बिल्डिंग, बिल्डिंग टू कैश, सेम अकाउंट, फिक्स्ड एसेट। चलो लास्ट वाला पढ़ो सब लोग, क्या दिया है लास्ट वाला? परेश, वन ऑफ अवर डेटर टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। ओके, हमने उसको क्या बोला? परेश was one of our debtor to the extent of 20,000, settled his account with us by making a direct payment to Ajay, one of our creditor, to the extent of 20,500। मतलब हमारा डेटर था परेश, जिससे हमने को लेना था 20,000। हमने उसको क्या बोला कि यार परेश तुम मुझे मत दे 20,000, डायरेक्टली अजय को दे दे। मुझे अजय को 20,500 देना है, तू अजय को दे दे और अपना अकाउंट सेटल हो जाएगा। तो मुझे सोच के बताओ, आर वी रिसीविंग कैश और आर वी पेइंग कैश इन दिस ट्रांजैक्शन? हमें ना तो पैसे आ रहे हैं ना तो पैसे जा रहे हैं, बराबर है? तो क्या होना चाहिए एंट्री? हु इज द रिसीवर ऑफ दिस ट्रांजैक्शन? अजय। एंड हु इज द गिवर? परेश। लेकिन अजय को कितना देना था? हाउ मच वर वी सपोज्ड टू पे टू अजय? 20,500। लेकिन उधर क्या लिखा हुआ है? 20,000 gave to an extent of 2,500 settle हो गया। 20,000 देके to the extent of 2,500 settle हो गया। तो 500 रुपीज क्या होगा? क्रेडिट, कैश, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो आप ऐसे सोचो कि आपको परेश से पैसा आया, समझो परेश ने आपको पैसा दिया होता, तो आप क्या एंट्री करते? कैश टू परेश 20,000, क्योंकि परेश से 20 लेना था। अग्री? यही पैसा आप अजय को देते, आपको परेश से पैसा आता तो आप क्या करते? कैश टू परेश 20,000 करते। और आप अजय को पैसा दे रहे हो तो आप क्या एंट्री करोगे? अजय टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, है ना? ये करोगे ना आप? तो अजय को देना था 2,500, आपने उसको दिया 20,000 टू देन एक्सटेंट ऑफ 20 और बाकी 500 डिस्काउंट। कैसा 500 डिस्काउंट? बिकॉज यू आर सेटलिंग द अकाउंट टू एन एक्सटेंट ऑफ 20,500, दिया हुआ है वहां पे, दिख रहा है? इस अकाउंट इज सेटल्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 2,500, मतलब 2,500 जो देना था फिर टूस, अभी कोई देने की जरूरत नहीं है, तो बाकी 500 रुपया डिस्काउंट। ये दो एंट्री समझ में आई आपको? पहले पैसा आया फिर पैसा गया, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है, पैसा आया भी नहीं गया भी नहीं, तो कैश कैश कट, पैसा आया भी नहीं है गया भी नहीं है, डेबिट क्रेडिट नलिफाइड। सो व्हाट आर यू लेफ्ट विद? अजय डिस्काउंट रिसीव्ड, अजय टू डिस्काउंट टू परेश। तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रहा आपका एंट्री। दिस इज योर जर्नल एंट्री। अजय अकाउंट डेबिट टू परेश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, मिला? अजय टू परेश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ऐसा बहुत बार होता है प्रैक्टिकल बिजनेस में। प्रैक्टिकल बिजनेस में मेनी टाइम्स दिस हैपेंस। ओके, से फॉर एग्जाम्पल आपको मुझे फीस देनी है, समझो 5,000 रुपीज। ओके, आपको मुझे फीस देनी है 5,000 और मुझे स्टेशनरी वाले को 5,000 देना है, तो मैं क्या बोलूंगा? आप डायरेक्टली जाके वो स्टेशनरी वाले को दे दो 5,000।
वही हो गया, अपना अकाउंट सेटल और मेरा स्टेशनरी वाले के साथ भी सेटल. तो यू आर माई डेटर, स्टेशनरी वाला वॉज माई क्रेडिटर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? So instead of passing two entries, cash to student and जो भी है परेश टू कैश, उससे मैंने क्रेडिट पे खरीदा है, परेश है स्टेशनरी वाला. तो instead of doing cash to student and paresh to cash, what I'll do, paresh is the receiver, student is the giver. Story over. Is that clear? लॉजिक बैठा दिमाग में, डायरेक्टली एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर करवा दिया पैसा हमने. ओके, ये एंट्री होगा आपका अजय टू परेश. वो डिस्काउंट क्यों आया, समझ में आया आपको? डिस्काउंट अलाउड नहीं है, रिसीव्ड है, क्योंकि हमने परेश से 20 लेना था, अजय को 20,500 देना था, बट वी आर गिविंग हिम ओनली 20,000 ना, तो 500 सेटल टू एन एक्सटेंट ऑफ 2,500 सेटल हो रहा है. ओके, नेक्स्ट वन. सॉरी, कम टू सम नंबर. सम नंबर कहाँ गया? अरे, सम नंबर हाँ 7 सम बाकी था हमारा. टेक सम नंबर 7. एनी डाउट इन दिस? 9th प्रॉब्लम खुद से आया है, वेल एंड गुड, बिकॉज सेम टाइप यू नीड टू एक्सपेक्ट इन टेस्ट and even in your colleges, difficult college papers, this is the level. Any issues in 9th problem? Anyone? Arushi, Vinisha, Anika, Dev Patel, Dev Gehlot, Yashraj, Varun, Ishita. Good morning, Ishita. Diyanshi को समझ रहा है? Yes, sir. Okay. ध्यानशी को टेस्ट में कम आया था. नेक्स्ट टेस्ट आई वांट गुड परफॉर्मेंस नाउ. ध्वनि उदेशी थोड़ा थोड़ा जा रहा है अभी. गुड. यस सर. गुड. चलो, कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 7. अभी इसमें पूरा गुड्स और इंश्योरेंस का ट्रांजैक्शन लिया हुआ है, ठीक है. क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं वापस. 7th क्वेश्चन, राइट डाउन. 7th क्वेश्चन का फर्स्ट वन देखो क्या दिया है. गुड्स ऑफ 5,000 आर लॉस्ट ड्यू टू फायर. 75% ऑफ द लॉस वाज सेटल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी वाया ECS. सेटल्ड मतलब क्या? बैंक अकाउंट. सेटल्ड का मतलब क्या? इज दिस क्लेम एडमिटेड और क्लेम रिसीव्ड? क्लेम रिसीव्ड है ना. 7th सम, फर्स्ट वन, 7th का फर्स्ट वन. तो एंट्री क्या बनेगी अभी सोच के बताओ मुझे. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट. देखो, लॉस बाय फायर तो डेबिट करना है. इंश्योरेंस क्लेम होता था ना पहले. इंश्योरेंस क्लेम कब लिखते थे? रिमेंबर when we used to write insurance claim or insurance company account? when they admitted. admit. तब मिलना बाकी है. that time they were debtor, उनसे पैसा लेना बाकी था. भी तो दे दिया है, सेटल मिल गया है. और कैसे सेटल होता है? ECS से दिया हुआ है. ECS मतलब बैंक, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम. रिमेंबर, NEFT, RTGS, ECS are all through bank. So bank account debit, lost by fire debit, Lost by fire. Goods lost by fire account. How much it will be? 1,250, 3,750, and 3,750 is claim. All of you got that? 75%. ठीक है. यही अगर क्लेम एडमिटेड होता तो मिलना बाकी होता तो यू वुड हैव रिटन इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. ठीक है. दिस इज सेटल्ड, रिसीव्ड मतलब पैसा आ गया. Second one, goods of 8,000 are lost due to theft. We made a claim of 6,000. However, only 50% of the loss was accepted. Now, what is this? Is this loss by theft account, insurance company account? Is this claim admitted or is this claim recovered? Admitted. So which account will you use, bank or insurance company? Insurance company. Insurance company over here. फर्क समझ में आया इसमें और उसमें दोनों में? रिसीव्ड है तो पैसा आ गया, तो चेक आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर पार्टी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है. बट अगर मिलना बाकी है तो फिर इट विल बी
claim account. Loss by theft, debit all expense and loss. Insurance company या insurance claim account भी लिख सकते हो. Insurance claim या insurance company account. तो goods lost by theft account. बराबर है. Goods are going out. Credit what goes out. Goods lost by theft account. Okay. How much will you write in goods? 4,000, 4,000, 8,000. Which claim will you take? 6 or 4? 4. Which claim you will take? 6 or 4? 4,000. Why not 6,000? Because that we admitted claim. We admitted. वो अपना claim का कोई वैल्यू नहीं है. कंपनी का इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आएगा, वो चेक करेगा और वो क्लेम बोलेगा, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है, ये भी हमने सीखा था, पहले आया था 9th 10th क्वेश्चन में. देन थर्ड वन, कैश ऑफ 500 वाज मिसअप्रोप्रिएटेड. एंट्री क्या होता है यहाँ पे? Loss by misappropriation account to cash. debit. Loss by misappropriation account. What is misappropriation? Misplaced. Misplaced. So loss by misappropriation to cash. Cash is going out, so 500 rupees. Loss by misappropriation to cash 500. Okay. Then fourth one, goods of rupees 800 were lost in transit and insurance claim admitted. Admitted मतलब मिलने वाला है कि मिल गया है? मिलने वाला है. कितना मिलने वाला है मालूम ही नहीं है. 800 मिलने. कुछ दिया ही नहीं तो क्या अज्यूम करोगे? 800 फुल्ली इंश्योर्ड पूरा मिल जाएगा तो क्या एंट्री करोगे यहाँ पे? अभी सोचो. Insurance company account debit to goods lost in transit. By transit. अभी अगर कुछ लॉस आएगा, will there be any loss in? नहीं, because fully admitted है ना. फुल क्लेम किया था इसलिए कुछ लॉस हुआ ही नहीं. कुछ लॉस हुआ ही नहीं. तो इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट. परफेक्ट है. दिस इज 800 रुपीज. ओके. गुड्स गया और आपका डेटर हो गया कंपनी. कंपनी से आपको 800 लेना है. सी द फिफ्थ वन कनेक्टेड. क्लेम रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी बाय आरटीजीएस. कौन सा क्लेम रिकवर्ड होगा? यही है ऊपर वाला. बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट. वेरी गुड. विल यू राइट बैंक टू गुड्स लॉस्ट बाय ट्रांजिट? नहीं. नो, बिकॉज गुड्स आर ऑलरेडी लॉस्ट ना. अभी तो वो डेटर से पैसा आ रहा है. तो व्हेन यू रिसीव मनी फ्रॉम अ डेटर, व्हाट एंट्री यू पास? अजय से पैसा आता है तो बैंक टू अजय. बैंक टू अजय. यहाँ पर बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम. ऊपर जो लिखा है सेम अकाउंट यूज करना. क्लेम तो क्लेम, कंपनी तो कंपनी. अमाउंट कितना आएगा? तो 800 रुपीज. इज दिस क्लियर? सो ऑल पॉसिबल इंश्योरेंस एग्जांपल्स आर कवर्ड. या तो क्लेम एडमिटेड हो सकता है या तो रिकवर्ड. एडमिटेड है तो कंपनी अकाउंट लिखो या क्लेम अकाउंट लिखो, डेटर है वो तुम्हारा. और रिकवर्ड है तो बैंक हो जाएगा. एंड जब दो क्लेम दिए हो तभी हमारे क्लेम की कोई वैल्यू नहीं है, कंपनी का क्लेम लेना है. एंड जब क्लेम पहले एडमिट किया और बाद में पैसे आए, एडमिट किया तभी क्लेम डेबिट होगा और जब रिसीव किया तभी क्लेम क्रेडिट हो जाएगा. बैंक टू क्लेम. तो डेटर सेटल हो गया. इज इट क्लियर? So that's about it. 7th sum. Then we come to sum number 7. 7 तो किया. Sum number 10. 10th sum. All of you take sum number 10. Problem number 10. Problem number 10. Okay. I think 10th one is the last problem of assignment. Okay, rest we have to do accounting equation and all that. I'll start from the next lecture. So 10th one is the last one for today. देखो क्या दिया है. Employees had taken inventories worth rupees 1 lakh. Cost price was 60,000 on the eve of Deepavali towards their salaries. पहले तो मुझे पढ़ के खाली ये समझाओ कि इसका मीनिंग क्या होता है. लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज. वो दिवाली का एक्स्ट्रा रुपीस देते हैं ना. बोनस लेते हैं ना. दिवाली बोनस. दिवाली हाँ. बोनस.
ओके ओके, उसके लिए क्या हुआ, मतलब ट्रांजैक्शन क्या हुआ ये बताओ. व्हाट इज द एंट्री मत बोलो, ट्रांजैक्शन बताओ पहले. व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? दिवाली बोनस में क्या सही सोच रहे हो आप? We paid them 10,000 extra on their salary. We paid them 10,000 extra on He their paid salary. 40,000 extra. There's a type of commission. No, think. What do you mean by inventories? Assets. Stock. Goods. कुछ goods gift दिया. हाँ, शाबाश. कौन था ये? वरुण. गुड्स हमने उनको सैलरी के फॉर्म में दिया. ऐसा होता है. अभी समझो विजय सेल वाला है. विजय सेल वाले का इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है. उसको दिवाली बोनस देना या सैलरी देना एम्प्लॉय को, तो सैलरी को वो टीवी दे देगा, कहीं वॉशिंग मशीन दे देगा. सैलरी में रोकड़ा नहीं देगा, उसको टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज दे देगा. इट्स नॉट अ गिफ्ट, वो उसकी सैलरी ही है, एक्सपेंस ही है कंपनी का. लेकिन नॉर्मली हम लोग सैलरी की तरफ क्या देते हैं? हाउ डू वी गिव सैलरी? इन कैश, राइट? बाय कैश. So sometimes the owner can give goods also, as in this situation. टीवी दे सकता है, फ्रिज दे सकता है, वॉशिंग मशीन दे सकता है. तो इधर वही हो रहा है. हमने हमारे एम्प्लॉयज को दिवाली की शाम को सैलरी में कैश के जगह क्या दिया? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक दे दिया, गुड्स दे दिया. तो इसका एंट्री क्या बनेगा अभी सोचो. इन्वेंट्रीज टू सैलरी अकाउंट. उल्टा बॉस. Salary account debit to inventory account. Salary is our expense. So salary account debit to given Goods. as salary. Goods given as salary. That is what is inventory. जैसे goods हम लोग घर पे लेके जाते हैं तो क्या होता है? Drawings to goods withdrawn for personal use, right? Advertisement में देते, sample में देते तो क्या होता है? Advertisement to goods distributed as sample. अभी क्या लॉस हो गया तो loss in transit to goods lost in transit. वैसे ही अगर एम्प्लॉय को सैलरी के लिए दे रहे हो तो व्हाट इज अवर एक्सपेंस ओवर योर? सैलरी. आर वी गिविंग कैश? नो. इफ यू हैव गिवन कैश देन सैलरी टू कैश होता है ना. चेक से दे तो क्या होता? सैलरी टू बैंक, है ना. फर्नीचर उठा के दे देते तो क्या होता है? सैलरी टू फर्नीचर. एसेट जा रहा है ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो क्या दे रहे हैं यहाँ पे? आर वी गिविंग cash or check? What are we giving to him? Goods. Salary account debit to goods given as salary. Is this clear? No. अभी नेक्स्ट थिंग, कौन से वैल्यू पे दोगे? उधर दो वैल्यूज है, 1 लाख भी है, 60,000. कौन से वैल्यू पे दोगे ये? 1 lakh. 1 lakh. 60,000. 60,000 है. देखो 1 लाख क्या है, 60 क्या, वो समझो. व्हाट इज 1 लाख, व्हाट इज 60? 1 lakh is mark price or selling price. तो अभी जेठालाल बागा और नट्टू काका को दिवाली पे टीवी दे रहा है, समझो सैलरी के फॉर्म में. जेठालाल नट्टू काका और बागा को टीवी दे रहा है. ओके, तो वो टीवी की वैल्यू सपोज 10,000 है और उसको बेचने वाला था जेठालाल 15,000 में. तो विल दैट टीवी जो जेठालाल दे रहा है उनको, वो 15 में देगा कि 10 में देगा? 10 पे ही जाएगा. 10 पे ही देगा ना, 10 पे ही दोगे. आप ऐसे ही करोगे अपने कस्टमर, एम्प्लॉय के साथ रिलेशन अच्छा रहे, इसके लिए आप उनको कॉस्ट पे दोगे, क्योंकि एम्प्लॉय को भी पता है कॉस्ट प्राइस क्या है, आपको भी पता है कॉस्ट प्राइस क्या है. आप अपने एम्प्लॉय को थोड़ी लूटोगे प्रॉफिट लगा के. आर यू अंडरस्टैंडिंग? So whenever you are giving goods to your own employees, you will always give them at which price? Cost price. You won't charge profit to them. Is this clear? कोई भी बिजनेस में, आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, ओके? कोई ऐसा खड़ूस ओनर होगा जो अपने एम्प्लॉय को प्रॉफिट लगा के बेचता है. जनरली कोई ऐसा नहीं करता है, ओके? तो आपको जितने में पड़ा वही प्राइस पे उसको दे दोगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे. तो यहाँ पर वो 1 लाख इज द सेलिंग प्राइस. तो 1 लाख कभी यूज करना है आपको, ये बता सकते हो आप? When you will use that 1 lakh rupees? When you are selling to a customer. When you are selling it to your customer, that time you चिपकाओ 5 profit बिंदास. तो आपका धंधा है.
तो आपके कस्टमर को आप जब भी बेचोगे तभी प्रॉफिट लगा के बेचोगे, है ना। लेकिन जब आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो तभी थोड़ी प्रॉफिट लगाओगे, तभी तो कॉस्ट प्राइस पे। वैसे ही जब आप घर पे लेके जा रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, रिमेंबर आता था ड्रॉइंग्स टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, वो कौन सा प्राइस पे होगा, 60,000 की 1 लाख 60,000। खुद को थोड़ी प्रॉफिट लगाओगे। आप सैंपल्स में दे रहे हो गुड्स, सैंपल्स में एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, कौन से भाव पे दोगे, 60,000 की 1 लाख 60,000। आपका गुड्स जल गया तो आप क्या बोलोगे, कितने का लॉस हुआ, 60 का हुआ कि 1 लाख का, 60,000 का। So what are we concluding out of this trend? We are concluding one important assumption that whenever we sell the goods to the customer, it will be with profit at selling price. But whenever goods are going for some other reason apart from sales, whenever goods are going out for some other reason apart from sales, like goods are withdrawn, goods are lost, goods are given as sample, goods are given against salary, ये सब रीजन से गुड्स जा रहे हैं, तो आप कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे इनको, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपका कॉस्ट ही जा रहा है, गुड्स का कॉस्ट ही जा रहा है उतने का। आप उसको थोड़ी प्रॉफिट लगा के बताओगे कि नहीं भैया मैं तो 1 लाख में बेचने वाला था, मेरा गुड्स जल गया तो मेरा 1 लाख का लॉस हो गया। इज दैट द पॉइंट, इज दैट ट्रू? नो, योर लॉस इज ऑफ ओनली 60,000 रुपीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एम्प्लॉय को भी आप 60 में दोगे तो सब जगह गुड्स कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, एक्सेप्ट फॉर वन प्लेस, व्हेन sales, normal sales to customer, that will be happening at selling price with profit. Got the logic? All of you understood this? Very important concept. Okay, आगे बहुत बार काम आने वाला है ये। तो एंट्री क्या होगी अभी सोच समझ के बताना मुझे, what will be the entry? Salary account debit, that's your expense. Goods given as salary, goods distributed as salary, goods given as salary. जैसे गुड्स गिवन है सैंपल था, वैसे गुड्स गिवन है सैलरी। कितना आएगा अमाउंट, 60 के 1 लाख 60,000। ओके, खड़ूस मत बनना, अपने एम्प्लॉय को प्रॉफिट मत चार्ज करना, ठीक है, बी लाइक जेठालाल। ओके, पगार मत बढ़ाओ लेकिन जलेबी फाफड़ा खिलाओ। हाँ बोलो। Why can't we write inventories account? You can write inventories. Inventory and goods is one and the same only. बट आगे जाके हम लोग अभी और डिटेल में सीखेंगे, जर्नल जब अकाउंटिंग इक्वेशन सब हो जाएगा तब आपको बताया था मैंने, याद है, ये सब गुड्स वाले जितने अकाउंट है एक पर्टिकुलर अकाउंट में मर्ज हो जाते हैं। कौन से अकाउंट में मर्ज हो जाते हैं ये याद होगा किसी को? तो परचेज, ये सब अकाउंट एक ही अकाउंट में मर्ज होने वाले, परचेज। ओके, तो ये गुड्स इन्वेंट्री जैसा कोई अकाउंट बचेगा ही नहीं। अल्टीमेटली परचेज अकाउंट बचता है, सेल अकाउंट बचता है, एंड जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसके लिए स्टॉक अकाउंट, अनसोल्ड के लिए स्टॉक, बाकी सब परचेज। ओके, तो यहां पर आप लिखो इन्वेंट्री लिखो चलेगा, या गुड्स गिवन है सैंपल लिखो चलेगा, एंड में सब कुछ परचेज में ही मर्ज होने वाला है। इन्वेंट्री एंड गुड्स आर इन्वेंट्री, गुड्स, स्टॉक बोलो, दे आर ऑल वन एंड द सेम। देन wages paid for erection of machine 20,000. What do you mean by erection of machine? It is for installation. Installation, manufacturing of machine. So what will you debit? Will you debit wages or will you debit machine? Machine. क्योंकि मशीन बनाने पे हो रहा है ना, तो ऐड हो जाएगा वन टाइम लॉन्ग टर्म एक्सपेंस, एड अप टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, लंबा बेनिफिट देके जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, machinery account debit to cash account will be how much? 20,000 rupees. Is that clear? Machinery account debit to cash. Do not write wages. Wages कब यूज करना है? तो फिर wages कब यूज करना है? wages account कब यूज करना है? अगर वो कुछ बनाने का काम या कुछ मशीन को प्रिपेयर करने का होता है तब हम लोग वेजेस यूज करते हैं। मशीन को खरीदते वक्त नहीं, उसके बाद सपोज किधर कुछ इनकर हुआ, ट्रांसपोर्ट वगैरह, मतलब कुछ हेरा फेरी या फिर साफ सफाई करने में, तो या फिर मेनली फॉर गुड्स। ओके, गुड्स के लिए अगर इनकर हुआ तो आप वेजेस यूज करो, गुड्स बनाने में, गुड्स हेरा फेरी करने में, तब वेजेस। ओके, एसेट खरीदने पे हो रहा है तो एसेट। इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर 45,000 वाज पेड बाय चेक। बताइए एंट्री अभी किया हमने,
Drawings account debit. Drawings account debit to Drawings bank Drawings to account. bank. Drawings account debit to bank. Very good. Perfect. Ekdam. Drawings to bank 45,000. Very good. Next one is fourth one, last transaction of assignment sheet. Purchase goods from Ram of list price 1 lakh. He allowed 10% TD. Cash discount of 5,000 was also allowed for quick payment. GST 5%. Batao. Is it on cash, credit, partly cash, partly credit? How is the transaction? Cash, credit, partly cash, partly credit. What? Cash, because it has been given that he has allowed us 5,000 Fully discount. cash. Fully cash. Fully Fully cash. cash. How can it be partly cash, partly credit? Have they given half amount paid? 1/3 amount, 50%? ऐसा कुछ दिया है आपने? नहीं. तो fully cash. कैसा बता था fully cash? Quick payment, prompt payment हुआ है. तो cash transaction हुआ. तो how will you go for discount? सबसे पहला क्या लोगे आप? 1 लाख. 1 लाख पे सबसे पहला क्या माइनस करोगे बताओ? TD. कितना होता है? 10,000. 10,000. Net price will be 90,000. उसमें क्या करोगे? डायरेक्टली सीडी के जीएसटी? GST प्लस CGST 2.5%. 5 है ना? आई एम ब्रेकिंग इट डाउन. एंड SGST 2.5%. कितना होता है ये? 2250. 2250. Is check for calculations. And then CD. अभी CD का कोई लफड़ा है? किस पे कैलकुलेट करना? अमाउंट ही दे दिया आपको. What is the amount of CD? 5,000. So how much did you pay finally? 89,000. Is that clear? TD फिर GST फिर CD. पूरा कैश पे था. ये समझ आया कि नहीं? ये बताओ. क्योंकि फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट ना 1/3 हाफ 30% कुछ नहीं दिया है. तो एंटायर ट्रांजैक्शन इज ऑन कैश बेसिस. ओके. एंट्री क्या बनेगी अभी इसकी? बोलो. Purchase account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to discount received account debit to debit. Discount received Cash account account credit. Sorry. To discount cash received. account. To cash to discount receipt. To cash to discount. और zoom out करो मैं थोड़ा. Okay. So purchase account debit, what amount will you write? 90,000. 90,000. Input 2250. To cash 89,500. To discount 5,000. नॉर्मल एंट्री था. खाली डिस्काउंट का परसेंटेज नहीं था, अमाउंट दे दिया था. तरीका वही है. टीडी फिर जीएसटी फिर सीडी. Got it? So that completes your assignment. Okay. Next lecture. आज के लिए इतना काफी है. Homework you will get from standard textbook. Next lecture we are going to start with theory. Okay. Some theory, some objectives and accounting equation and pro forma documents from standard textbook. तो अगर आपने standard textbook physically buy करके रखा है ठीक है. नहीं किया है तो वेट करना till नवंबर दिसंबर. रिवाइज्ड एडिशन आ जाएगा, शायद मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो जाए तो वो आप परचेज कर लेना. अदरवाइज अभी पीडीएफ भी चलेगा. मैं यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे सब मार्किंग करूंगा. ओके. जो जो इम्पोर्टेंट है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से जो भी पढ़ना है ऑब्जेक्टिव सब मैं इधर मार्किंग करूंगा. वो पूरा पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप पे. तो वो मार्किंग वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा. ऑल इम्पोर्टेंट मार्किंग्स एंड ऑल विल बी देयर इन दैट पीडीएफ. ओके. तो ये हम लोग करेंगे स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर डे आफ्टर टुमारो. इसमें कोई डाउट्स हो तो यू कैन वेट. अदरवाइज होमवर्क कर लेना. ओके. सबमिट कर लेना कल शाम तक. अभी भेज रहा हूँ. यू कैन लीव. बाय सर. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. रिया यू वेट. रिया और कौन थी अपनी? एक और दो जन को डाउट था आई थिंक कल. Sir, can you send the important entries on the group? Important sums you mean for the? Yes. Yes. Yeah, that I'll check. Thank you, sir. Welcome. सर आपने लेक्चर में क्या कराया था संडे को? कौन से लेक्चर में? डाउट सॉल्विंग लेक्चर में. हाँ सर. डाउट सॉल्व किया था. किसी को जीएसटी का डाउट था, किसी को कैश क्रेडिट का, टीडीसीडी का था, बेरर चेक क्रॉस चेक का था.
वो सब सर करवाएंगे। मुझे एक डाउट है, बेरर चेक में हमें कैश ही लिखना चाहिए ना? रिसीव्ड अ बेरर चेक इज कैश। दिया है तो बैंक, दिया है तो अपने बैंक से जाएगा ना पैसा, आया है तो कैश, कैश अकाउंट, क्योंकि वो आप एनकैश भी करवा सकते हो अक्रॉस द काउंटर और डिपॉजिट भी करवा सकते हो। ओके सर। रिसीव्ड अ बेरर चेक इज कैश ऑलवेज। ओके सर। ओके, यस हितांशी। मीटिंग फॉर द मीटिंग ना, या यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम। अब तुम्हारा प्रोसेस होने के बाद यू कैन जस्ट ईमेल मी, नो प्रॉब्लम। ओके सर, बाय सर। Bye, take care. Don't have any doubts ना?